Bismillahirrahmanirrahim. So we are talking about the statistics, right? The statistics. What is statistics? डेटा को पकड़ने का, ऑर्गेनाइज करने का, फिर एनालाइज करने का, रिजल्ट निकालने का और चिपकाना बॉस के ऊपर. ठीक है? So we say that we have the two types of statistics. One is differential, but we need little fatter one. Okay, differential and the black one because she got some color blindness. And inferential. डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल. डिस्क्रिप्टिव बोले तो हम दिखाना चाहते हैं कि व्हाट इज द डेटा एंड हाउ इज इट लुक लाइक. आप स्टूडेंट हो, आपके कैसे मार्क्स हैं, हाउ आर यू डूइंग इन द क्लास, हाउ आर यू डूइंग इन द सब्जेक्ट, हाउ आर यू डूइंग द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो हाउ आर यू डूइंग इन द होल क्लास, मे बी लाइक आई टोल्ड यस्टरडे, द वेरिएंस एंड ऑल. नाउ बट if you say inferential, we are deriving from these and predicting something so that we can predict how this is gonna be. Okay, because of this data we can predict things. That's inferential. We will see that later on. Now here in the differential statistics we have seen the first thing we saw is what? Measure of central tendency. Measure of central tendency, MCT. Measure of central tendency. कि भैया इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने इतने सारे मार्क्स लाए, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, यार बैट्समैन है, इसने आज सेंचुरी की, कल 0 हो गया, कल 10 रन के, 20 रन के, और डेटा बहुत सारा है, 200 मैच ने खेले हैं, बट आई हैव टू give me the one number. I'm telling, give me the one number to see how this batsman is. So we calculate the average. We calculate what? So we got here the mean, the median and the mode. We did it. Triple M. We done it. The mean is the sum of all the things divided by total number, right? Mean is important. Mean is the summation of I is equal to 1 to n of x of I divided by n, right? This is the formula, right? So if I say here the mean is ज़्यादा मोटा होगी मेरे ख्याल से, ना? Why you like black? I don't like it, यार. So mean is equal to summation of I is equal to 1 to n x of I and divided by total number. Then we say mean. Sometimes we say the mean of population and mean of sample. Then we do n minus 1. So I don't want to confuse you right now, leave that. But there is two things, mean of sample and mean of population. Okay. Now this is the arithmetic mean which is giving me the central number, some one number to tell me how this batsman is. Okay. I'll say this batter is averaging 50. Okay, here he has sometimes done 200 also, sometimes done 10 also, sometimes done 20 also. But the average gives me the measure of central tendency. It tells me how is batsman look like. Okay, then we say the mean. This was the mean. Then is the median. Median gives the central number and the mode, which gives the most number of. इसने ज्यादा runs कितने की है? इसने भाई 50s से ज्यादा की है. ये 40s ज्यादा करता है. So that will also give me some kind of information कि भैया ये ज्यादा 40s करता है. But this will not show me. There will be some problems if we have the outliers. I told you yesterday what is an outlier. If an outlier, the whole central tendency will be biased. ही जैसे मैंने कहा कि इसने 1 किया, 0 किया, 0 किया और यहां पे इसने डबल सेंचुरी मार दी. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसने 10 रन खाली किए, 0 0 200, right? If I do the arithmetic mean, what will it is? 200 plus 0 plus 0 plus whatever. So this is gonna be how much? 210 divided by 4 5 or 20, 4 2 go 52, averaging 52. Oh wow, that's a great batsman. Oh bro, what are you saying? इसने तुक्का एक दूसरा लगे, बाकी में 0 हो रहा है. So इसमें ये जो बंदा है 52 हमें लगा it is giving the 52 as an average. It is not perfect. Why? Because there was an outlier which got it biased.
विच गॉट द, सो जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम बोल रहे थे, हम क्यों बोल रहे थे कि हमें डेटा बहुत सारा है लेकिन मुझे एक नंबर चाहिए से पता चलेगा कि हाउ इज आई एम द मार्क्स इन द क्लास, ठीक है। तो आई वांट टू सी हाउ द क्लास गोज, आई कांट टेक द होल 80 बच्चे क्लास में है तो 80 बच्चों का, गिव मी द वन नंबर, इट्स गिवन मी 70, एवरेज 70 है, तो एवरेज 70 है, नाइस, द क्लास इज गोइंग गुड। लेकिन इसमें अगर ऐसा है कि सब फेल हो गए, एक बच्चे को 200 आ गए, ठीक है, तो उसने मेरे को 50 के आसपास कर दिया, आई एम डीमिंग द क्लास गुड, जबकि है नहीं। क्योंकि जो आउटलियर है, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा नंबर जो बहुत ऊंचा है या बहुत छोट कम है, जिसने पूरा सेंट्रल टेंडेंसी को ही खराब कर दिया। दिस थिंग इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दिस कॉल्ड व्हाट। सो अगर आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर दिया, ठीक है, यू ऑल्सो नीड द मेजर ऑफ, because measure of dispersion will tell you whether that mean was okay or not okay, because the mean median mode will give you the measure of central tendency. But if there are outliers, if there are what, then this measure of central tendency will be skewed, will be what, it won't give us the exact information. So we need something else also, we need what, that's called a measure of dispersion. What do we need? एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वही हम वेरिएंस जो हमने कल पढ़ा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने कल पढ़ा है ना, वेरिएंस, दिस इज नॉट टुडेज टॉपिक, आई एम जस्ट बिल्डिंग द टॉपिक, ओके, दिस इज हाउ आई डू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, दीज आर द टू गाइज हु गिव अस व्हाट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कल मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, है ना, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, summation of I is equal to 1 to n x of I minus mu का square divided by, this is how we got, right? लेकिन जब हमने मीन निकाला था, क्योंकि मैंने कहा था दो सेट्स है, फॉर एग्जांपल एक के पास है 4 and 6 और दूसरे के पास है 1 and 9, ठीक है, 4 plus 6 divided by 2 is the mean, that is 5, 9 plus 1 divided by 2 is the mean, that is again the 5, इसका भी मीन 5 निकल रहा है, इसका भी मीन 5 निकल रहा है, जबकि ये गड़बड़ में है, ये अच्छा है, इसकी डिस्पर्शन मीन के आसपास ही है, मीन अगर 5 है उसके आसपास है नंबर्स, मीन 5 है तो बहुत, एक 1 पे है एक 9 पे है, बहुत दूर है, लेकिन मीन दोनों का 5 निकल रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा बेटर कौन है, तो हम इनकी क्या निकालेंगे, वेरिएंस, द वेरिएंस विल बी लाइक व्हाट, समेशन, मैं कल पढ़ा चुका हूं, आई इक्वल 1 to n, जितने भी नंबर्स हैं इसको फिर इसको पकड़ो, जो नेक्स्ट नंबर होगा नेक्स्ट नंबर होगा उनका ऐड होगा समेशन, लेकिन हर एक बंदे का पहले मीन के साथ क्या होगा, माइनस, तो जैसे 4 है 4 माइनस का स्क्वायर, प्लस करो नेक्स्ट नंबर कौन है 6 माइनस मीन का स्क्वायर, डिवाइडेड टोटल नंबर कितने हैं, अब अगर 20 नंबर्स है तो प्लस 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 सब नंबर का करो, डिवाइड बाय 20 करो, so 4 minus 5 is 1, 1 का स्क्वायर is 1, 6 minus 5 is 1, 1 का स्क्वायर is 1, 1 plus 1 is 2, 2 by 2 is, तो इसका 1 आ रहा है। अगर इसका देखेंगे हम वेरिएंस, वेरिएंस विल बी समेशन ऑफ i is equal to 1 to n, ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, that's why I'm going faster, i is equal to 1 to, this is 1 का माइनस मीन is 5 का स्क्वायर, प्लस देन नेक्स्ट नंबर is 9 माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज 2, 1 minus 5 is 4 का स्क्वायर इज 16, 9 minus 5 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 plus 16 32, that is 32 by 2, that is 16। अब देखो ये नंबर 16 आ रहा है, ये नंबर 1 आ रहा है ना, इसका 1 आ रहा है वेरिएंस, उसका 16 आ रहा है, तो जब 16 आ रहा है बड़ा नंबर आ रहा है तो पता चल रहा है कि it is having some outliers, it's having what, it's the जो डेटा है वो डिस्पर्स्ड अच्छी तरह से नहीं है, ठीक है, बात समझ आई। नाउ हमारे पास क्या फॉर्मूला है आउटलियर निकालने की, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक एक्चुअली, गॉट इट। अब इसी को अगर हम रूट करेंगे, अगर इसी को क्या करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ दिस सिग्मा स्क्वायर, दिस विल बी योर स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस विल बी योर व्हाट,
दिस विल बी योर स्टैंडर्ड डिवीजन। मैंने कहा था ना इस पे एग्जाम्पल करना, किया आप लोगों ने? वेरी गुड, आई विल सी दैट। दिस इज स्टैंडर्ड, यानी कि 16 का स्क्वायर इज 4, आई मीन अंडर रूट ऑफ 16, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, बिकॉज 16 इज 4 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमें निकला ना 16 आंसर। तो ये 16 हमें क्या निकला? वेरिएंस। व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन? अंडर रूट ऑफ 16। 16 हमें निकला ना वहां से, वेरिएंस में निकली 16, क्या निकली? So we will do under root of 16, that will be the standard deviation, that will be 4. Okay, we'll come back to it later, but let us do our question first. The question is how we have the what is range? Okay, what is interquartile range, IQR? क्वार्टाइल्स मैंने कल दिखाया है, मैंने परसेंटेज, परसेंटाइल और क्वार्टाइल कर दिखाया है ना, I showed you yesterday. Okay, did you recall what I showed you na? Do you remember that? The percentage means it tells about the person. Let's say for example 30 marks है, तो I say total थे 50 into 100, so this will be 0 0 gone, 5 6 30 16 60, वो 60% marks है। This 60% will tell इस बच्ची ने क्या किया, इसके marks क्या है। But if I want to see how she goes in the class, that's called percent. The percentile is like, for example, इसको यहाँ पे 30 मार्क्स थे, है ना, जो बाकी बच्चे थे, एक को 20 थे, एक को 5 थे, एक को 6 थे, एक को 7 थे, whatever, और यहाँ से किसी को 60 भी थे, 90 भी थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 को टोटल बच्चे 7 है। परसेंटाइल विल बी कि भैया इससे या इससे छोटे कम जो है वो कितने हैं 1 2 3 4, है ना, सो इट विल बी 4/7 into 100. 4 by total number is how much? 7, because total is 7. Okay, into 100. मानो अगर total 10 थे, इससे और भी थे यहाँ पे, so इससे यहाँ पे जो थे वो 4 थे, इससे कम जो थे वो कितने थे? 4। टोटल बच्चे कितने हैं? 10 into 100, 0 0 gone, 4 times 40. This 40 percentile will tell us कि इस बच्ची के, ये बच्ची जो है ना कैसा फेयर करती हैं क्लास में, कि इससे कम कितने बच्चे हैं और इससे ज्यादा कितने बच्चे हैं, वो हमें परसेंटाइल से पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि हाउ शी स्टैंड्स इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, गॉट इट। और क्वार्टाइल में हमने बताया कि जो भी मेरे पास डेटा है, जो भी मेरे पास क्या है, आई विल से दिस इज 0 एंड दिस इज 100%, दिस इज 100 परसेंटाइल, दिस इज 0 परसेंटाइल। इसको पहले मिड मानो, यहाँ पे ये करो और ये करो, 4 हिस्से करो। दिस विल बी कॉल्ड Q1, दिस विल बी कॉल्ड Q2, दिस विल बी कॉल्ड Q3। सो Q2 will be 50 percentile, this will be 25 percentile, this will be, now why is this important? Because this will help us to get the outlier. We will understand what will be the outlier if our data is this thing. We will get a formula, what will be my outlier, what will be my, the first of all I'm saying these are my, let us take an example, to understand. Let us take an example, say we have a data, I want to select the cricket, the girls team for a cricket, okay, and I want young 20 girls, 20-year-old, but everybody won't be 20-year-old, like somebody will be 25, 24, 19, 18, 5 साल की बच्ची, ना, I don't want that. 40 साल की बूढ़ी नहीं चाहिए भैया, उसकी हड्डियां टूटेगी ना। So if there could be the, I have to see whether I have the outlier or not. बच्ची है कि बूढ़ी है, I don't want that. I want young people who can hit the sixes. Okay, let's see. We have say data. We got some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. I got a team of 10 girls. Okay, in a Chak De style. Okay, Chak De, you know? You don't know. शाहरुख खान की मूवी नहीं देखी थी वो? तुम लोग तो बहुत शरीफ हो यार, क्या बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 7 9 10, ठीक है। तो एक आई बच्ची, उसकी एज थी 15, इसकी 12 थी, इसकी 14 था, इसका 15 था, इसका 20 था, 20 था, 20 था, फिर आगे यहाँ पे 30 था, ये 40 था और ये 60 था। आ गए, हमें खेलना यार,
नानी जी भी आगे मेरे को भी खेलना है, तो मना थोड़ी ना करेंगे, बट आई हैव टू सी वेदर आई हैव आउटलेयर और नॉट. What would be my formula? So I will first arrange this data in the ascending order. I will first arrange the girls in the ascending order. क्योंकि ये आपस में लड़ाई करेंगे कि मैं इससे छोटी हूं, ये मेरे को आगे क्यों है, क्योंकि लड़कियां लड़ाई करती है तो पता ही है, इसलिए हम ascending order, वरना नहीं करते है ना. ठीक है, तो पहला कौन है मेरे पास 12, फिर 14, देन 15, फिर 20 20 20, 3 20 है ना, 15 दो बार है, कोई मसला नहीं, 2 बार तो लिखा मैंने. So I got this. So if I draw that scale here, this is my 0 quartile, this is my 100%. 100%. I mean not quartile, 0 percentile and 100 percentile. ठीक है ना? Now I need the other guys. Now it is 10, right? 11 करेंगे सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि अगर 10 है तो बीच वाला निकालना पड़ेगा फिर मीन का. ठीक है, अगर 10 है, इवन नंबर है, तो बीच वाला बराबर मत आएगा, तो जो बीच वाले 2 नंबर है उनका प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. ठीक है, अब हम सिंपली से करते हैं, यहां पे एक और आगे बच्ची, दैट इज 65. सो आई गॉट 11. आई गॉट हाउ मच? सो 11 को तो 5 बीच वाला आएगा ना सीधे, 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये रहा मेरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये वाला बंदा जो मेरा है, दैट विल बी गोना बी माय Q2, दैट विल बी क्वार्टाइल सेकंड. अब इन दोनों का आपस में करो बीच में, ये 2 इधर से गए, ये 2 इधर से गए, ये बीच वाला है, दिस इज गोना बी Q1. यहां पे ये 2 इधर से, ये 2 इधर से, दिस इज गोना बी Q3. सो आई गॉट Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. I am interested in Q3 minus Q1. I'm interested in Q3 minus, because that thing is called as interquartile range. Q3 minus Q1. Get it? What is that? What is that equal to? Q3 minus Q1. What is that equal to? 40 minus? How much is that? So 25 is my IQR. This is very important. Interquartile range is actually Q3 minus Q1. Okay? That is very important for my formula to set the range of, to set my range and check whether I have the outliers or not. Gotcha? Now look here. The first of all, I will जो है arrange करूंगा मैं data in the form of ascending order. क्यों? लड़कियां झगड़ा करती है ना. एग्जैक्टली. उसके बाद मैं उनको डिवाइड करूंगा क्वार्टाइल्स में, फिर देन आई विल माइनस Q3 माइनस Q1, दैट विल गिव मी इंटर क्वार्टाइल रेंज. यू विल राइट इट डाउन, इंटर क्वार्टाइल रेंज. ओके, मिल गया. अब मुझे पहले देखना है कि लोअर बंदा कौन है, कि इससे अगर लो हो गया, इससे अगर वो आउटलेयर में आता है, अगर इससे हाई हो गया बंदा, ठीक है ना, वो भी आउटलेयर में है, तो ये रेंज कौन सी होगी अब, कि जो मैं बताऊंगा कि ये ठीक है, ये आउटलेयर्स नहीं है, तो मैं एक रेंज बताऊंगा. अब इस रेंज में अगर बंदे हैं तो वो आउटलेयर्स नहीं है, इस रेंज के अगर उधर है तो आउटलेयर, इस रेंज के इधर है तो आउटलेयर. उसके लिए फॉर्मूला है. पहले इसको पकड़ते हैं, ये कौन है, छोटा वाला. ठीक है, अभी छोटे वाले को पकड़ते हैं. छोटा वाला कैसे निकलेगा, कि भैया जो छोटा वाला है वो हम करेंगे काम, तो मैं कहूंगा कि उससे अगर छोटे हैं ना, लेस देन अगर है, ठीक है, सो लोअर रेंज जो है उससे छोटे हैं वो आउटलेयर होंगे, वो हमें निकलेंगे इस Q1 से. किससे? सो आई से लोअर रेंज. फर्स्ट आई विल कैलकुलेट नाउ व्हाट, दैट विल बी Q1, ओके, माइनस 1.5 इंटू वो वाला बंदा IQR. What is Q1? Minus 1.5 times what's the IQR? 25. Multiply 25 into 1.5 quickly. How much is that? How much? 37. 15 में माइनस करो इसको. माइनस
और 12 कैसे निकलेगा? ये तो 37 है, 37 को 15 माइनस करोगे तो वो तो 30, वो तो 22.5। सो माइनस 22.5 ये मेरी लोअर रेंज आ गई। क्या आ गई? अब मैं हायर रेंज, यानी कि माइनस 22.5 is my lower range for the outliers for this data, and I will have the upper range now. Upper range कितनी आएगी? Upper range will come from the Q3 the same way. Upper range will be equal to, हाँ जी, Q3 माई, आपने ठीक किया था, मल्टीप्लिकेशन चेक करना होगा फिर से, मुझे लग रहा है गड़बड़ किया आप लोगों ने। अच्छा, यस, हाँ, IQR 25 ही है ना, ये है ना 25 वाला। ओके, नाउ व्हाट विल बी Q3? व्हाट इज Q3? माइनस 1.5 इंटू दैट, इंटू दिस, उसको प्लस करेंगे, Q3 को प्लस करेंगे। वो आप Q3 को प्लस करो, 1.5 इंटू 25, 1.5 25 निकलेगा वही 37.5, उसको प्लस करो Q3 के साथ। व्हाट इज Q3? Q3 व्हाट इज दैट? सो 77.5 विल बी द आउटर लिमिट ऑफ द आउट। अगर इससे ज्यादा मुझे आ गया, अगर उससे, क्योंकि इस डेटा, मैं इस डेटा की बात करूं, इस डेटा में मीन जो आएगा मेरे, दैट इज 20, दैट्स व्हाट है ना, बीच वाला है ना, ये बीच वाला कौन है? अगर हम ना इसका ये मीडियन देखेंगे, दैट इज 20। लेकिन इसमें चूंकि अगर मुझे आ गया, कितना कहा आपने, 77.5 से अगर बंदा ज्यादा आ रहा है मुझे, दैट इज एन आउटलेयर। ठीक है, अगर माइनस 12.5 से इधर आ गया, दैट इज एन आउटलेयर। तो मेरा जो आउटलेयर अगर नहीं होना है वो इसके बीच में आएगा। ठीक है, एंड जो मेरी डिस्पर्शन डेटा की होगी, जो क्या होगी, वो इसी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आउटलेयर नहीं है तो आपकी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप कर रहे हो, दैट कैन गिव यू द गुड इंफॉर्मेशन। अगर आउटलेयर है, जैसे यहां पे आ गया बंदा, जो कि यहां पे डेटा आ गया मेरे को 200, ठीक है, दैट विल स्किव इट। तो जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो सही नहीं होगी। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताएगी कि भैया आप, जैसे ये मानो स्कोर ऑफ द बैट्समैन है, ठीक है, दिस इज स्कोर ऑफ बैट्समैन, यहां पे मैंने किया ना 20, 30, 40 इस तरह से डेटा को, इसलिए ये ज्यादा कम आ गया। अगर मैं इसको 20 के करीब रखता तो फिर हमें उसी के आसपास, उसके ज्यादा 30 के बाद ही लेता ये, है ना, आउटलेयर। अब चूंकि मैंने इसका डेटा ऐसे लिया ना, इसलिए थोड़ा लंबा आ गया बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पल। अब अगर हमारे पास बैटर है, उसने भी स्कोर किए हुए हैं, तो अगर इसने कभी यहां पे 77 से ज्यादा किया है स्कोर, तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा, या हम जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे, that will not give you the correct information because the data is dispersed, because there are outliers. Got it? You getting my point? What I'm saying? So this जो इंटरक्वार्टाइल रेंज जो हमारे पास है Q3 माइनस Q1, एंड उससे जो मैंने निकाला आपका लोअर रेंज और अपर रेंज, किसका? ये रेंज किसकी है कि इससे कम अगर होगा तो क्या है, ये आउटलियर्स की। सो देयर इज अ रिलेशनशिप, क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरक्वार्टाइल रेंज और रेंज, समटाइम्स दे से ओनली रेंज, और इट्स एक्चुअली इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओके, व्हाट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज एक्चुअली? Q3 minus Q1, Q3 minus, question can come like this, what is the relationship between interquartile range and the outliers? So you can say that yes, we can create a formula, and because of this we will have the range if the values are below this or above this, they are outliers. Then by that हम क्या साबित करेंगे उससे, कि जो मेरी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है, I cannot apply मेजर सेंट्रल टेंडेंसी on it because the data is dispersed, it is too much dispersed, राइट? सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइक साइंटिस्ट एक सैंपल्स ले रहे हैं, साइंटिस्ट क्या ले रहे हैं, दे आर टेकिंग सैंपल्स, तो उसमें आपका ग्राफ आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, जो ना वैल्यूज आ रहे हैं वो मानो यहाँ पे आ रहे हैं सारे, यू नो, सैंपल्स जो अर्थमेटिक मीन है उसके आसपास ही आ रहे हैं सारे, एक इधर आ गया, ठीक है,
तो वो आपको सीधे आउटलेयर में आ जाएगा और आप बताओ कि शायद मे बी दिस इज एन एरर, मे बी दिस इज एन, सो यू कैन इग्नोर इट। अदरवाइज ये वाला बंदा है सबको, इसकी जो आप करोगे ना स्टैटिस्टिक्स निकाल के मेजर सेंटर, यू ट्राई टू गेट द मीन मीडियन मोड, ये वाला बंदा इनके साथ पंगा मारेगा बिकॉज दिस इज एन आउटलेयर। सो इन दैट सिनेरियो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हम आउटलेयर को बोलते हैं कि तू साइड में ही रह, वी डिसरिगार्ड दैट। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप रिसर्च करोगे उसके बाद आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अक्सर करते हैं, इफ देयर आर टू मच ऑफ आउटलेयर्स, सम रैंडम आउटलेयर कमिंग अप, ओके, वी डू द इन द पाइथन, आप देखोगे कैसे फॉर्मुलास पे लगाते हैं हम, ओके, वहां पे हम आउटलेयर्स बाज़ाब्ता निकालते हैं, फिर उन आउटलेयर्स को हम डिसरिगार्ड करते हैं। Why? Because there may be some erroneous results. Because if the whole data is coming around this and one of them is coming here, so we will not take it. Because why? Because it will, जो मेरी measure of central tendency है वो हो जाएगी खराब. So it won't be central, it will be skewed. It will be what? Got it? That's all for today. We will continue this.